Ji, Assalamualaikum everyone and welcome back to another video. So it's a long time. This video is going to very important. In this video, actually I'm talking about the most important topics in programming. No matter the programming is about C++, not matter it is JavaScript, Java and maybe another language right now. But these topics are going to very amazing and I hope I'm explaining as well. There are most important topics in programming. There are four actually. The first is conditional statements, second is loop, the third is pointer, and the fourth is function. There is other and foundation languages, code definitely. Foundation is always important in any aspect, but in this video I'm going to talk about conditional statements and loops. So first of all, I'm repeating conditional statements. I'm already revising, I'm already teaching you in the previous videos, and in this video I just revise them. Which statements? If else statement and definitely else if statement, and definitely switch. That's going to very important in programming, and because of them we just write difficult code, uh, close them all. So first of all, I just make a simple structure. Every you know about it in C programming, in C++ programming, and we just solve some confusion between difference between in C and C++. So no problem. Just I am writing IO stream. Okay, now we have a using namespace. Okay, namespace. Okay, std, right? So today I'm getting a lot of help by the code editor, and I love to introduce a new code editor, that is CLion. And in the next videos I'm trying to do all the C++ programming in this code editor. This is an official code editor by JetBrains, and JetBrains is an international software agency that provide different type of ID, no matter it is a CLion, it's a rider shaper, and other a lot of code editors. So we just saw this code editor. अभी तक तो इनकी आदत नहीं हुई यूज करने की आप लोगों को, right? So first of all, we have an int main, and now we just got int. There is a structure, right? So this is a simple basic structure. No matter it's you can write in another programming language, right? If you write in JavaScript, so there is no any structure, right? But in C++ there is a basic structure. In C also there is a structure proper. So at that time, okay, so coming to the point, the topic number one is conditional statement. We just write a simple structure. We have an if condition, and I just write a simple structure of if else statement. So this is a simple structure of if else statement. Okay, देखिए यहाँ तक तो बात होती है if else statement की. अगर ये condition correct है, solve it, just print it, just execute it. Otherwise, if this condition is wrong, then print another condition. I hope यहाँ तक तो clear होगा. Okay, ऐसी requirement आती है कि there are other conditions somehow, right? So we just make it else if condition. Oh shit. Okay, so in this point जहां पे मैंने स्पेसिस छोड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे हम राइट करते हैं अपनी कंडीशंस को. I just make a condition simple, right? So we get a variable int, and I get a num which is equal to anything, right? We're getting from user. Okay, so for that we just make a simple function, simple using simple cout keyword. Cout keyword is used for printing syntax, any type of syntax, if it is in double quoting. Can we use printf? Okay, what's the printf, man? So printf actually the function of printing in C. Okay. So, the teachers explain us, the professor explain us, the difference between C and C++ programming is just a printing function of that between cout and a cout and a C and a printf. देखें, आसान अल्फाज में बात करने का मकसद ये है कि C++ is an updated version of C. So when we talk about printf, so printf is a function of C language that behave like cout in C++ and in C. But the thing is, if I practice
प्रिंट एफ, ओके प्रिंट एफ। सो प्रिंट एफ क्या मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इन सी प्लस प्लस? डेफिनेटली यू डू इट मैन। सो बट यूनिवर्सिटी में मत कर लेना, गलत कर देंगे। ओके, इफ आई से इंटर अ num, okay, enter a num, can it's run, can it execute, can it properly work? Definitely it's properly work, but wait a second, we have in cin, can we use input? Definitely you can write input, जो कि हम यूज करते होते हैं सी के अंदर। ठीक है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली एक नई चीज होगी जो जिन्होंने मेडिकल पढ़ा है, ठीक है, लेकिन जस्ट वेट एंड वॉच। here we can write a conditional statements, right? We can write conditions. So for that if I make a condition, if num is greater than, num is greater than 10 for example, so then printf, okay, देखिए printf you can use it, मैंने आपको जस्ट दिखाना है तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, अगर बाकी जगह पे मैं सी आउट यूज कर रहा हूँ। कैन वी यूज इट एट दैट टाइम? यस, हम यूज कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। आई जस्ट शो दैट कि जितना टीचर्स ने कहा था उतना नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है, बताया नहीं है वो, मे बी रीजन, सर्टन रीजन। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नम नम क्या ब्लॉक ओपन हो गया, नम इज ग्रेटर देन 10, okay, so here is it, okay, now we make another condition, that is num, if num less than 10, then I can write here, can I write here? Yes, I write here, I write here, I write here that num is smaller than 10, okay, so okay, there is a mistake, there is a mistake of just terminating statement, okay, else out, and we just write it, num is equal to 10, okay, so that's it. Can we run it? Definitely we run it, and when we run it, प्लीज रन हो जाए यार। ओके, सो नहीं, दिखाने का कुछ और मकसद है, एक सेकेंड, चलें जी। अब जरा क्या ये लाइन रन करेगी? मेन चीज ये है, बिकॉज वी मेक छोड़ो, आगे चलते हैं। जब इसको हम रन करते हैं, बात करने का मकसद सिंपल ये है कि प्रिंट एफ फंक्शन रन कर रहा है हमारा एक्यूरेटली, एंड यू कैन सी दैट इंटर नम इट्स वर्किंग प्रॉपरली, राइट? सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम देते हैं यहाँ पे 10 तो हमें दे देगा, सॉरी थोड़ा सा काम तेज हो गया है, अगर देते हैं हम इसको 20 तो इट कैन से नम इज ग्रेटर देन 20, ओके, इट्स प्रॉपर वर्किंग। कंडीशन समझ रहे हैं? समझेंगे, दोबारा से समझेंगे, बेफिक्र रहें। इफ आई गिविंग इट 9 so it say num is smaller than 10, but if I say in 10 so num is equal to 10, कंडीशन क्या है अब समझते हैं। I just wait a second यार, ये बढ़ाने हो गया। चलिए जी, अब हम अपना जादू वाला पेन ओपन करते हैं जिसे हम एपिक पेन कहते हैं। चलिए जी, दूसरी स्क्रीन पे ओपन होगा डेफिनेटली, ओके। चलिए जी, देखो कंडीशन समझ लेते हैं पहले, ठीक है। आई नो कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा बिकॉज वो पहले पढ़ चुके हैं, तो जस्ट स्किप इट मैन, ओके। सो देखिए, देयर इज एन कंडीशन, अगर यूजर इसको वैल्यू देता है, यहाँ पे यूजर वैल्यू देता है कि भाई वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 10, ओके। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, हम यहाँ से इसे यूज कर लेते हैं। देखें, यहाँ पे यूजर फॉर एग्जाम्पल वैल्यू देता है 10, ठीक है। अगर 10 देता है तो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, देखो अगर मेरा जो नम है, ठीक है, नंबर जो है, नंबर क्या है, नंबर है 10, ठीक है। 10 अगर ग्रेटर देन है इससे 10 से, तो क्या प्रिंट करना है? नम इज ग्रेटर देन, लेकिन जब नम इज 10 ग्रेटर देन 10 है, बिल्कुल नहीं है, क्या होगा? कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। फिर जाएगा वो इसके पास, अब इसके पास जाके कहेगा भाई वो कंडीशन तो गलत है, अब आपके पास क्या कंडीशन है वो बताओ मुझे, ओके। तो यहाँ पे भी कहेगा कि यार जो 10 है अगर तो वो लेस देन है 10 से, ठीक है, तो प्रिंट कर दो ये वाली स्टेटमेंट, नम इज स्मॉलर देन 10। लेकिन जब वो इसको कंडीशन को पढ़ेगा, ठीक है,
तो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, अब जाएगा वो थर्ड। अब थर्ड के पास वो कंडीशन ही कोई नहीं है, तो वो जस्ट इसे प्रिंट कर देगा। दैट्स इट, हियर्स द मैटर। ओके, सॉल्व इट मैन। सो द रीजन बिहाइंड इट, कंडीशंस का मतलब ये होता है कि क्या होता है कि जब हम एक कंडीशन करेक्ट नहीं है तो अगले के पास चले जाए, अगली करेक्ट नहीं है तो अगले के पास चले जाओ, एंड द लास्ट कंडीशन इज एल्स, राइट? कि अब कोई भी कंडीशन नहीं चली तो वैसे चला दो बस, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक तो बात हुई थी हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। ओके, इसको हम दो तीन भी बना सकते हैं, वो डेफिनेटली आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अब जल्दी से ना हम यहाँ बात कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट्स की, बिकॉज वी जस्ट गेटिंग रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक्स। हम ये पढ़ चुके हैं पहले पिछले वीडियोस में, ठीक है, और काफ़ी सारे टास्क की हमने प्रैक्टिस की है। सो वी जस्ट मेक अ स्विच स्टेटमेंट, राइट? एंड यहाँ पे क्या करते हैं हम ना, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पहले कर चुके हैं, बस प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो SWITCH VS कोड की आदत पड़ी है जैसा। ओके, एक्सप्रेशन है हमारे पास नम, ठीक है। अब नम के अंदर मैं ये कह सकता हूँ केस वन, ठीक है। अगर केस वन के अंदर ऐसा करें कि इसके अंदर सी आउट कर दें, ठीक है। सी आउट में हमें करना सिंपल इतना है, देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम टाइम से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो नो मैटर कि वो सी से हैं या सी प्लस प्लस से हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो क्या होगा उस केस के अंदर, जब हम यहाँ पर सी आउट लिखते हैं और हम ये कहते हैं भाई कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, तो नाम हम यहाँ पे बता देते हैं ना, फॉर एग्जांपल कि इंटर नाम फ्रॉम 1 to 7। ओके, सो नाउ अगर 1 रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम ले देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं मंडे। ओके, सो आफ्टर दैट स्टेटमेंट को हम ब्रेक करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट है वो कंप्लीट है और उसके बाद फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एज वेल एज मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ से केस स्टेटमेंट लेता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलिए अब इसको मैं पेस्ट करवा देता हूँ। इट्स 4 5 6 7, चलिए ये हो गया 7 हमारे पास, 7 6 5 4, it's 3, it's 2. So rocket is launched. Scout, Monday, it's Tuesday, it's Wednesday, it's Thursday, then we have a Friday, then we have Saturday, the last topic is Sunday, छुट्टी होगी, ठीक है। So this is a switch statement, right? Okay, there's I think there's a default case. Okay, ठीक है, हमें यहाँ default case लगाना है, default और ओके सॉरी, इसकी आएगा ऊपर लाइन में, चलें जी। और यहाँ पे लास्ट आ जाएगा, इधर देते हैं हम सी आउट दे देते हैं इधर भी, ओके, और इसको देते हैं इनवैलिड नंबर, ठीक है। हियर्स इट, देन ब्रेक, चल। So that's it. Here's a problem solved. Okay, potential uncovered. What's the okay? It's properly solved, I think so. So if I run this code again, now if I giving a number, so there's a number of 7, so it's Sunday, right? So अब बात करने का मकसद क्या है यहाँ पे, रिवाइज करने का, देयर इज अ बिटवीन डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड अ स्विच। सो आवर प्रोफेसर डिफाइन इट वेरी वेल दैट if we have a multiple entry points, okay, and one exit point, then we can use if else statement. But if we have only one entry point and multiple exit point, like we have one entry point, there is a num, and a multiple exit point, there is a Monday, Tuesday, Friday, there is a number of counting 1 2 3 4 5 6 7 and so on. So there are multiple exit point, then we can use a switch, and that definition is very good. And you can also getting an example of electric lead, right? There are the multiple switches and only one entry point and multiple exit point, then we can use a switch. And if I talk about physics or chemistry, but only physics, applied physics, you can also study circuits there, and you can also study switches there, right? So for some multiple methods of the function, and you can, I think you can understand, right?
Okay, so I think so here's it, and we can talk about if else statements. We talk about if else statements and also switch statements. हम आगे डिस्कस करते हैं लूप्स को। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ओपन कर लूंगा क्योंकि हम ना लूप्स को समझ रहे हैं क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए। हाँ, आज हमने ये भी पढ़ना है। दिस इज अ सूडो कोड ऑफ असाइनमेंट। ओके, यूनिवर्सिटी एग्जाम से मिली है एंड आई एम नॉट गिविंग एन ओरिजिनल कोड। राज की बात है, याद रखना। ठीक है, देखिए ना, उसकी रीज़न ये है सिंपल कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट डू कॉपी पेस्ट एंड यू कैन चेंज सम वेरिएबल्स, सम पॉइंट्स एंड सबमिट इट। तो इट्स वेरी डेंजरस मैन, काफ़ी उससे मसले बनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार उससे अच्छा है। ओके, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये काम बड़ा गलत है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना मैंने फिर सोचा कि आपको ना इस असाइनमेंट का हम देंगे सूडो कोड। ठीक है, सो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट डू व्हाइल लूप। What's the reason behind? First of all, we're talking about do while loop. The main reason is behind, देखिए, loops के अंदर there are three topics: do while loop, a while loop, and for loop. So in industrial based work, we most of the cases talk about while loop and for loop. We don't consider do while loop. The reason behind it, in programming, in development procedure, we mostly use for loop, and then in some cases, in some areas, we use while loop, right? In some of the cases, in for loop, we can use as while loop as a nested loop, right? And we don't consider do while loop because there are some you can say negative pairs, like you can say as a pros and cons, right? So that's why. Okay, here is it. The main thing is हमें समझना पड़ेगा इसे। तो do, समझना इसको, do and why। सो यहाँ पर आती है कंडीशन और यहाँ पर आता है बॉडी। स्पेलिंग को इग्नोर करो यार। ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखें एक दफ़ा। देखिए, मैंने ना आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे कि डू वाइल लूप में हम एक लूप लिखवाते हैं, ठीक है, और उसे प्रिंट करते हैं। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर जो नंबर मैंने लिया हुआ है, ठीक है, अगर तो वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू है 20 के, तो उस केस के अंदर हमें सी आउट करवाना है कि नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। ओके, सो हियर इज द कंडीशन। सही हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा यार, ये एरर क्यों आ रहा है, इसको देख लेते हैं। द लूप इज इनफाइनाइट, नन ऑफ इट्स कंडीशन वेरिएबल्स नम आर अपडेटेड इन द लूप बॉडी। ओके, हमें ये बता रहा है कि ये जो लूप हमने लिखा है ना, ये एक इनफाइनाइट लूप है। ओके, लेकिन हम तो फिर करके देखेंगे ना यार, हमें तो पंगे लेने हैं। हम इसे रन करते हैं, चलिए जी, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसे देता हूँ यहाँ पे नंबर, अच्छा ये मैं प्रीवियस स्टेटमेंट है, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ ज़रा थोड़ी सी, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे यहाँ से, कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है, ओके, हियर इज इट। नाउ वी कैन जस्ट सॉल्व इट, एंड इफ आई गिविंग अ नंबर ऑफ 12, सो इट कैन से नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। देखो बात को समझो एक दफ़ा। मैंने से ये कहा, मैंने कहा अगर तो नंबर जो है मेरा ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 20 है, ग्रेटर देन की बात है, मतलब बड़ा है नंबर, तो क्या करो, इस लाइन को प्रिंट करो। लेकिन ये फिर भी प्रिंट करी जा रहा है। बात समझने वाली है कि मैंने से कहा ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब 21 होना चाहिए, या 20 हो या 21, 22, 23 ऑनवर्ड हो। ठीक है, अगर मैं इसे देता हूँ वैल्यू नंबर, फॉर वैल्यू दे दी मैंने इसको यहाँ पे 10, उसके बावजूद भी ये सी आउट स्टेटमेंट को प्रिंट करी जा रहा है। हियर इज द पॉइंट इज व्हेन वी से डू, पहले काम एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन कंडीशन पड़ी जाएगी। हियर इज द प्रॉब्लम ऑफ डू व्हाइल लूप। अच्छा, ठीक है, तो बनाया क्यों गया इसको, दैट्स द मेन क्वेश्चन। देखिए, कई दफ़ा ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल इन अ फॉर्म हैव यू, बिकॉज डू व्हाइल लूप फॉर्म में यूज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, कि कंडीशन जो है ना, पासवर्ड लगा रहे हो आप, पासवर्ड लगेगा, एग्जीक्यूट होगा, बाद में मैच होगा, लेकिन प्रिंट करवा देना एक मैसेज। ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्वेश्चन। व्हेन वी हैव अ रिक्वायरमेंट, देन वी यूज डू व्हाइल लूप, बिकॉज वन टाइम, एट लीस्ट वन टाइम, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना है, प्रिंट होना है, कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा। ठीक है,
नो मैटर क्या है वो वर्क, ठीक है। सो व्हेन वी यूज डू व्हाइल लूप वी कैन कंसीडर दैट एट लीस्ट इफ द कंडीशन इज रॉन्ग, even if condition is wrong, at least the loop body works or execute at least one time, okay। So that's the reason behind do while loop, okay। इससे एक लूप बना लें हम, ठीक है। उसके लिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज यार अब बनाया है तो कर लेते हैं। मेरे पास एक इंट है, इंट सम, सम इज इक्वल टू 0, ओके ओके, कोई मसला नहीं है यार, सम इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। देन मेरे पास एक इंट है आई विच इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, उसको भी 0 ले सकते हैं, वैसे मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है ओके। अच्छा डायरेक्टली ले सकते हैं, डायरेक्टली भी ले सकते हो, वैल्यूज चेंज करते रहेंगे बार बार में, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली भी ले सकते हैं तो नहीं मसला इतना। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसी प्रोग्राम के अंदर मैं मल्टीपल लूप यूज़ करूँगा, तो एक दफ़ा मैंने इंटीजर्स ले लिए तो बाद में मैं डायरेक्ट उनकी वैल्यूज चेंज करूँगा, मैं उनको बार बार नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो कर सकते हैं, वो आगे जाके देखेंगे, क्वेश्चन आ सकता था इसलिए मैंने बता दिया। अब डू में हम क्या कर रहे हैं, हम डू में ना इस तरह करते हैं, ओके। तो यहाँ तक मैंने क्या किया, मैंने कहा सम विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ दीज टाइप ऑपरेटर्स, इन्हें यार अब क्या कहते थे मेरे जहन से निकल गया, मे बी टर्नरी ऑपरेटर, नहीं टर्नरी ऑपरेटर्स नहीं मेरे ख्याल से होंगे, यार नाम देने से निकल गया, अब देख लेना आप, लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया होगा। सो आई जस्ट से आई, देन आई जस्ट से सम प्लस प्लस, बल्कि आई को प्लस प्लस कर देते हैं, है ना, ओके, आई प्लस प्लस, ओके। इस तरह करते हैं, सम की जगह ना हम आई को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है, ताकि हाँ ना हमारा इनफाइनाइट चल जाएगा, ठीक है। और कंडीशन यहाँ दे देते हैं, कंडीशन यहाँ दे देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें प्रिंट करना है यहाँ पे, अगर आई लेस देन इज इक्वल टू एन, आई लेस देन इक्वल टू दे देते हैं, ठीक है, आई लेस देन इज इक्वल टू और चलें, ठीक है जी, सॉरी सम, सो एन हम यहाँ ले लेते हैं, गेट कर लेते हैं, ठीक है। और एन क्या है, कोई भी नंबर है, एन की जगह हम नम ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे से में नम ही चल रहा था बिकॉज मैंने उसे वही ली थी, उसके लिए हम एक सी आउट स्टेटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और इसे कह देते हैं इंटर एन नम, यानी मैंने रिमूव किया स्टार्ट में, मेरे जेन से निकल गया था कि हमें इसे यूज़ करना है आगे, ओके नम, पता थोड़ा सा भारी हो रहा है, एक दफ़ा प्रोग्राम लिख लेने दो मुझे, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसे, ठीक है। और बाद में सी आउट कर देते हैं हम किसको, सम, ओके। सो प्रोग्राम आई थिंक सो, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हम हैंडल दे देते हैं एंड एल, ओके। सो रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं क्या बनता है, ड्राई रन कर लिया, इंटर नाम 20 10 आ गया यहाँ पे तो, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अगर यहाँ देते हैं हम नाम, ओके, is it, if I can run this code now I'm getting a 10, so here's a 10, okay। so if I getting some, so अब यहाँ पर ना हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ओके। मैंने ना यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, स्टेटमेंट आपको बताना मैं भूल ही गया। सो स्टेटमेंट यहाँ पर यह क्वेश्चन की कि राइट ए C++ प्रोग्राम that print numbers from 1 to n, ओके। सो ये क्वेश्चन तो असाइनमेंट वाला है, हाँ बिल्कुल असाइनमेंट, असाइनमेंट वाला नहीं, टास्क वाला, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, एक मुबारक हो आपको, ठीक है। सो हाँ वहाँ पे एक वैल्यू एक्स भी है, तो डोंट कंसिडर दैट, बट जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ आपकी। अब रन करें इसको, अब आपको रन करने में मज़ा आएगा बिकॉज आपका एक टास्क सॉल्व हो गया, चलो सो देते हैं हम 10 फॉर एग्जांपल। तो क्या कर रहा है ये, 1 से लेकर 10 तक में जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इन सबको सम कर रहा है, आंसर आ गया 55 हमारे पास। पर कैसे कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग। देखिए डू का समझ आ गया कि डू कोई काम कर रहा है, ठीक है। कंडीशन हमारी हमेशा एक्यूरेट रहेगी यहाँ पे, अगर ना भी रही तो एक दफ़ा प्रोग्राम रन करेगा हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ सिंपल कि एक सम है जिसकी वैल्यू इस टाइम 0 है, ठीक है जी, और एक आई है जिसकी वैल्यू 1 है। मैंने कहा आई
प्लस प्लस होगा। जब आई प्लस प्लस की बात आती है मतलब आई प्लस बाय 1 से प्लस हो रहा है, ठीक है, हर दफ़ा 1 प्लस हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड जहाँ तक मैंने नंबर दिया वहाँ तक वो प्लस होगा, अगर 10 तक दिया तो 10 तक होगा, ठीक है। और मैंने कहा जो सम में प्लस हो जाए आई, इसका मतलब ये है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। इसका मतलब ये है, ये जो है ना, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली वैसे लिख दिया तो आप समझ लें, ठीक है, इस बात को। इसका मतलब ये है, मीन्स कि यहाँ पे अगर सम की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल सम की वैल्यू आती है यहाँ पे 0 और आई की वैल्यू आती है 1, क्या हो गया 1, एज वेल एज अगर सम की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, इसमें प्लस होगा i2, i1 है, देन i2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3। सो ऑनवर्ड सब गिनती चलती रहेगी हमारे पास। आई होप मैं आपको समझा सकता हूँ ये, ठीक है। दूसरे लोगों को समझ आ गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन को हम आगे भी सॉल्व करेंगे फॉर लूप एंड व्हाइल लूप से, सो कंसीडर आप करते रहना साथ साथ, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो आई होप समझ आ गया आपको, ठीक है। इसे मैं यहाँ से ज़रा ओके मैं इसे कॉमेंट आउट कर देता हूँ। अब चलते हैं हम व्हाइल लूप की तरफ, ठीक है। उसके लिए भी सेम क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए, जस्ट डिफरेंस बिटवीन वी जस्ट से दैट कंडीशन पहले आ जाएगी, नहीं करके देखते हैं। वीडियो कितनी लंबी हो गई है यार। ओके, सो इज द स्ट्रक्चर, वीडियो कितनी हो गई है, इट्स 29 मिनट्स। आई एम सॉरी यार, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आपकी। अच्छा, अगर तो कंडीशन ट्रू है, खैर हम तो कंडीशन देते हैं सेम, डिफरेंट तो दूसरी है कि अगर आई लेस देन इज इक्वल टू नम है, ठीक है। उस केस में करना इतना से है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस इज इक्वल टू आई कर देना, ठीक है। और उसके बाद आई को प्लस प्लस कर देना, ठीक है। तो डेट्स इट, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो रन करके देखते हैं एक दफ़ा, रन भी करके देखते हैं, रन करता भी है, प्लीज़ रन हो जाना। 10 शिट, हमने सी आउट नहीं किया। Okay, if I run this code and the result is, I hope it's going correct. Okay, the answer is 100% correct. देखें, लॉजिक सेम है, जस्ट वी मेक अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, वी यूज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर काम कर रही है, बस एक दफ़ा हो जा, ठीक है। बट यहाँ पर कंडीशन अगर एक्यूरेट होगी तो काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता ग्रेटर देन, ठीक है, और अब मैं इसको कंडीशन देता हूँ, ठीक है, अब देखते हैं क्या बनता है, 0। ओके, सो बात करने का सर मकसद इतना है कि डू में प्रोग्राम एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा, आप हर काम तीनों लूप से कर सकते हो, एक बात याद रखना, ठीक है। कोई भी फंक्शन है, कोई भी काम है, यानी कोई भी प्रोग्राम जिसका लॉजिक डिफरेंट लग बन रहा है, आप वो हर लूप से काम कर सकते हो, इस बात को रिमेंबर रखना। कोई कहता नहीं कर सकते, आप वो कर सकते हो, ठीक है। बस बात इतनी है कि ये काम डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है, और ये काम जो ये जो व्हाइल लूप है ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पे यूज़ होता है, ठीक है। तो आप जो मोस्टली यूज़ करोगे वो व्हाइल लूप करोगे और फॉर लूप करोगे, डू व्हाइल एक बहुत कम यूज़ होगा। अब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में आता है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, मैं इंडस्ट्रियल बेस्ड बात कर रहा हूँ। आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। स्ट्रक्चर आपको आई होप समझ आ गया, व्हाइल फर्स्ट आ जाएगा, देन कंडीशन आएगी, देन बॉडी आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले बॉडी आ रही थी फिर कंडीशन आ रही थी, जस्ट इतना सा डिफरेंस था। लो जी, अब बात करते हैं माय फेवरेट लूप, फॉर लूप के बारे में, ठीक है। मैं मेंशन कर देता हूँ इसको ताकि रीडेबल रहे। दिस इज व्हाइल लूप, ओके। दिस इज डू व्हाइल लूप एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर लूप, ठीक है। उसके लिए भी मैंने सेम क्वेश्चन आपके लिए बना के रखा है, ठीक है। आई जस्ट फाइंड इट ओके, वेयर इज इट, हाँ, ऑलमोस्ट सम ऑल द नंबर्स फ्रॉम, ये भी सेम ही है, ओके। मैंने सेम क्वेश्चन बनाया है सबके, क्या बात है। उसकी मेन रीज़न पता क्या है, लॉजिक सबका सेम है, आपको प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप में ये है फॉर लूप, ठीक है, ओके। सो देयर इज एन इनिशियलाइजेशन, इसका कह सकते हैं हम, हाँ, इनिशियलाइजेशन
then condition and then updation, ठीक है। so first of all initialization int I is equal to 1, ओके। तो जो ऊपर दिया उसका क्या करेंगे, हाइड कर दो, फर्क नहीं पड़ता। then if I less than or is equal to num, ठीक है, ये आगे कंडीशन। देन अब आता है इनिशियलाइज अपडेशन, देन आई प्लस प्लस का सारा काम एक जगह पे कर दिया। इट्स दैट्स माय फेवरेट, और आप इंडस्ट्रियल बेस में यही यूज कर रहे होगे मैक्सिमम टाइम, ओके। नाउ वी गोना मेक अ स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर क्या है यार, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है बस यार, सी आउट और देन वी जस्ट से सम, ओके। हाँ दैट्स इट, यही है। नहीं इतना नहीं है, मतलब यार थोड़ा सा तो आगे करना है ना, सम करना है इसको, सम इज इक्वल टू, ओके, सम इज इक्वल टू, नहीं सम इज इक्वल टू सम प्लस इज इक्वल टू और आई, हियर इज इट, एंड सी आउट कर देंगे सम को, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। एंड इसमें कुछ अपडेट हम करना चाहें तो कर देते हैं, मेरा ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ और ऐड करना चाह रहा था मैं। चलिए एक दफ़ा इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन और बनाए, उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो सॉरी ये स्टेटमेंट बाहर आनी है, अच्छा सी आउट बाहर आना है, बिकॉज सी आउट अंदर कर देंगे तो वो फंक्शन बार बार रिपीटेशन में जाएगा और इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इसे हम बाहर रखेंगे। ओके 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 ओके, सो इसको रन करके देखते हैं। नंबर दिया इसको मैंने 10 ही, तो आंसर आ गया 55, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक समझ आया। देखिए इसमें काम हम सारा ऑलमोस्ट बॉडी के अंदर कर रहे हैं, इसमें हम सारा काम कंडीशन में करिए, इसी ब्रैकेट्स में करी जा रहे हैं, तो ये लूप ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है कंडीशन बनाने के लिए भी, ठीक है। कंडीशन बनाने के लिए, इवन इंटीजर देने के लिए, इसमें हम देख रहे थे इंट हम बाहर बना रहे थे, इसमें हमने इंट अंदर ही बना दिया, ठीक है। इसमें हम और सम भी हम इसमें अंदर बना सकते हैं, ठीक है, मैं मतलब यहाँ दे देता हूँ सेंट सम, ठीक है। तो यहाँ से हम बेशक खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से होगा ना कि आपको सम लिया ना आपने फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि इंट सम इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू कैन यूज एज सम लाइक दैट, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। बट मैं आपको कहूँगा कि आप इस चीज़ को बाहर ही रखो, बाहर रखो तो अच्छा है, ठीक है। बाहर रखोगे तो प्रॉपर एक्टिवेट होगा, सो मे बी इट कैन यू कैन यूज ऑल्सो इट, बट इट्स अ बेटर अप्रोच, राइट। आई होप आपको फॉर लूप्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इफ एल्स कंडीशन सब समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो मैं इस सारे हलवे को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द नंबर क्वेश्चन 1 इज चेक नंबर इट्स प्राइम और नॉट, ठीक है। तो मैंने क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं क्या करता हूँ, हम जस्ट प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके देखते हैं और इसको समझते हैं जस्ट, ठीक है। तो हियर इज द प्रोग्राम, यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारा लूप जो है वो प्राइम है नहीं है, हम सिर्फ इस कंडीशन को समझेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं करके आ रहा हूँ, ठीक है, हम पहले वो देखते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है हमारी ऑलरेडी, इट्स गो ना 35 मिनट्स। तो मैंने आपके लिए इसलिए ना ये प्रोग्राम बना के रख लिए थे पहले, ताकि मेरा आइडिया दिमाग में यही था पहले की यार कि आपको ना ये डायरेक्टली करवा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज पहले सॉल्व कर चुके हैं, बस हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हम सूडो कोड देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट पहले यहाँ तो आपको चीज़ें सब पता है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ इंट एन करवाया, एक नंबर, ठीक है, नंबर लिया यहाँ पे, उसको हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब मैंने यहाँ पे सारी गेम ना इस पार्ट की है, बूल की, ठीक है। मैंने बता दिया कि मेरा जो बूलियन है ना इज प्राइम वो ट्रू है, ठीक है, इज प्राइम वो ट्रू है, ठीक है। आफ्टर डैट मैंने कहा फॉर, यहाँ मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ जिसमें मैंने कहा कि इंटीजर जो है वो आई वो बराबर है 2 के। अब मैं यहाँ 2 को ले रहा हूँ बिकॉज प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, राइट, फ्रॉम सेकंड नंबर। तो मैंने कहा अगर जो आई वो लेस देन एन है, सिंपल कंडीशन है जिसे हमने रन करने के लिए, इनिशियलाइजेशन करने के लिए मैंने यूज़ की है। देन मैंने कहा n minus 1, the reason behind it, the reason behind it, so prime number and non prime number में डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहे हैं, ओके। सो देन मैंने कहा i प्लस प्लस इनिशियलाइज किया, और मैं बता देता हूँ कि इफ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू, अगर ऐसा है, देखिए अगर एक नंबर किसी और टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं है, ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ क्या किया, मैंने कहा बूल जो है, यानी कि बूल एक ट्रू फॉल्स बताता है ना डायरेक्टली, तो मैंने कहा ये जो इज प्राइम है वो फॉल्स हो जाएगा। इट्स मीन कि अगर ये फंक्शन एक्यूरेट रन कर देता है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये ट्रू की जगह फॉल्स कर देगा और कंडीशन ब्रेक करके बाहर आ जाएगा लूप से। लेकिन अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, देन वो आएगा इस पे और वो लिख देगा डायरेक्टली इज प्राइम, इट्स अ प्राइम नंबर, दैट्स इट मैन, क्वेश्चन सॉल्व, ओके। आप ट्राई करके देखना है इसको एक दफ़ा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन इज अबाउट चेक नंबर इट्स प्राइम और नॉट, ये हो गया हमारा। चलें यार लास्ट काम करते हैं अपना सूडो कोड, ठीक है। असल में ना वीडियोस मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा रिकॉर्ड की हैं, लेकिन पता नहीं आज क्या इशू बन रहा था, बार बार ना
एरर आ रहा था और दिल नहीं कर रहा था यार क्वेश्चन सॉल्व करने को, और काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं ऑलरेडी। बस कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने कहा चलो यार आज बना ही दें वीडियो, ठीक है। अच्छा, खैर अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और यहाँ पे लिखना है हमने सूडो कोड, ठीक है जी। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने एक अलग कोड एडिटर में लिखी हुई है। सो हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी लॉजिकल। ओके, सो अब हम अपने क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ अपनी सेकंड स्क्रीन पे, आप वीडियो रिवर्स करके थोड़ा सा बैक लेके जाके, ठीक है, आप कोड को स्क्रीनशॉट ले लें, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा कोड। एंड जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उनके पास तो ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन है राइट अ C++ प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ अ नंबर इज हैप्पी नंबर। ओके, अब हैप्पी नंबर कौन सा होता है बताएंगे आगे वो खुद ही। ए नंबर इज हैप्पी इफ रेपिडली रिप्लेसिंग इट विद द सम ऑफ द स्क्वायर्स of its digits eventually leads to 1 if the sequence form a cycle without reaching। ओके, स्टार्ट करते हैं, बिगिन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंग डैट हमें एक नंबर लेना है यूजर से, तो मैं क्या करता हूँ पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। एक इंटीजर ले लेता हूँ कि यहाँ पर बात है एक हैप्पी नंबर की, एक नंबर की बात, ठीक है। इंटीजर ले लिया, इंटीजर ले लेते हैं हम यहाँ पे n, ठीक है, n। ओके, आफ्टर सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर एक ओके, हम ऐसा करते हैं, हम ना यहाँ पे क्योंकि हमें मल्टीपल नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है, जो नंबर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं एक डिक्लेयर प्रिंट स्टेटमेंट that those numbers that are not allowed, ठीक है जी। ओके, now we have third statement, you can also say like print the number that are not allowed here, ठीक है। then we can say because they're an integer steps, we count also steps, right? so we can say declare integer, ठीक है, इसका नाम हम स्टेप रख सकते हैं, स्टेप विच इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारे 3 पॉइंट्स डिक्लेयर हो गए। ओके, नाउ हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, एक प्रिंट देंगे। अब प्रिंट आप सी आउट देंगे, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देंगे, प्रिंट एफ ना यूज़ कर लेना, ठीक है। इंटर अ नंबर, बट हम यहाँ पे क्योंकि हम वी आर अ पॉजिटिव पर्सन, सो हम यहाँ पॉजिटिव नंबर देंगे, ठीक है। खैर आगे चलते हैं, डॉट माई डेट रीड एन, ठीक है। अब एन से मुराद यहाँ एक नंबर है तो मैं दे देता हूँ, कुछ लोग यहाँ पे एन उठा के दे देंगे, अच्छी बात नहीं है यार, रीड नम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शन वी हैव अ स्टार्टिंग नंबर, ठीक है। अब हमने एक स्टार्टिंग नंबर देना है तो हम उसका भी प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट स्टार्टिंग नंबर, ठीक है जी। चलें जी, आफ्टर दैट वी हैव ए रीड यूज़ करेंगे। अब रीड यहाँ यूज़ करेंगे यार, रीड का मतलब पता क्या है, यहाँ पे रीड सी आउट है तो परेशान ना होना बिल्कुल भी, ताकि बता सके कि नाम हम ले कौन सा रहे हैं। देन ओके, एक काम और करते हैं, आई एम सॉरी अबाउट इट, हम यहाँ ना रीड की बजाय हम ऐसा करते हैं, हमने यहाँ प्रिंट करवा के, ठीक है, प्रिंट करवा के स्टार्टिंग नंबर, और वहाँ पर हम ना एज एन भी प्रिंट करवा देंगे। अब एन कौन सा प्रिंट होगा बात को याद रखो, एन वो प्रिंट होगा जो यहाँ पे मैंने यूजर को दिया है, ठीक है, नम नम, ठीक है। 3-4 लाइनें होगी, ठीक है। वैसे मैं वो कोड साथ साथ बताई जा रहा हूँ, तो अब मैं ये मत कहना कि यार आपने कोड नहीं करवाया, आपको कोड करवाना चाहिए था। कुछ चीज़ें आप खुद भी करें काइंडली, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं व्हाइल लूप। डू व्हाइल क्यों नहीं कर रहे, सॉरी फॉर लूप क्यों नहीं कर रहे, मेरी मर्जी, मैं व्हाइल में करवा रहा हूँ, फॉर लूप में कर लेना। लॉजिक सेम है ना, वो समझ आ गई कि लॉजिक कैसे सेम बनाना है, जस्ट चेंज सम स्टेप्स, राइट। व्हाइल लूप फिर हम कहते हैं जो हमारी नंबर है, ठीक है, नम जो है हमारा, ठीक है, इज नॉट, ठीक है, इज नॉट, यहाँ हम दे देते हैं 1 क्योंकि हमें लीड्स टू 1 करवाना है, इज नॉट 1, ठीक है। देन हम यहाँ यूज करेंगे एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड समझते हैं ना कौन सा, वो वाला, ठीक है। एंड इज यहाँ दे देते हैं हम, यहाँ पर ना हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक नंबर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक इंटीजर दे देते हैं, उसमें हम एक नंबर दे देते हैं कि यार फॉर एग्जांपल 10 है,
ये 10 जो नंबर है ना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हम नंबर ऑफ लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब लिस्ट आप देख लीजिएगा आप कैसे बनाते हैं, ठीक है यार। अब मैं बताता हूँ आपको, तो देखो सिंपल है, एक नाम लिया, इक्वल टू किया, ब्रेसेस यूज किए, ठीक है। अब क्वेश्चन सर अगर पूछे ना आपसे भाई ये आपने क्यों यूज किया, वो मैंने वीडियो में सीखा है और आप एक्सप्लेन करना, मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ। जब आपने मल्टीपल नंबर लेने होते हैं ना 10 20 30 40, तो आप इनको यूज करती हो, इन्हें हम कहते हैं ब्रेसेस जब मल्टीपल नंबर ले लेते हैं। तो आप यहाँ यूज कर सकते हो एन नाम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आप यहाँ पे सेट यूज करना, ठीक है। सेट नाम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। कर लेना, नहीं परेशान होना, ठीक है, डरना नहीं है, यूज़ कर लेना इसको, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जांपल, अगर सर पूछे आपको, सर को मैंने वीडियो में समझा है, ठीक है। इसे हम यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग मल्टीपल नंबर्स, व्हेन वी वांट टू से when we want to get multiple numbers in a function in a program, then which can use is set, right? So this is also a primitive data type of integer. Okay, now we can say num in, इसका नाम रखना है आपने सीन नाम, या जो भी रख लो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं दैट इज नम इन, अच्छा। अब यहाँ पर हम यहाँ यूज कर सकते हैं इज नॉट इन सीन नाम, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे यूज करते हैं डू वाइल लूप, डू यूज करते हैं। और डू में क्या करते हैं, देखो हम डू करते हैं यहाँ पे ये है, और डू वाइल लूप नहीं यहाँ यूज करें, डू सिंपल मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में यूज कर रहे हैं इसको। अब वाइल लूप के अंदर मैं वाइल बड़ा कर देता हूँ जरा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए वाइल, अच्छा। अब वाइल में हम इतना करते हैं कि हम यहाँ पे ना ऐड कर देते हैं, ओके ओके, हम ऐड करते हैं एन टू सीन नम, ठीक है। वो कैसे ऐड करना है, जस्ट टू मैन लाइक कोई भी आपका आपने नाम का नाम ब्रेसेस ऐड करो, और यहाँ पे आप डॉट ऐड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तब भी मसला ना, अगर ये डॉट ऐड का आपको करना ना है, आपने कोई बेसिक लाइब्रेरी यूज करनी है, तो यू कैन जस्ट go on ChatGPT and just write how to add a num in an array in a set, right? You can use it. डेफिनेशन पढ़ लिया करो ताकि आप खुद को डिफेंड कर सको, ठीक है। देखो यार, जो बाकी तरीका है ना इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं नहीं चाहता कि आप वो डिफिकल्ट तरीका यूज़ करो जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। और सर ने भी अलाउ किया हुआ है क्योंकि आप एडवांस यूज़ कर सकते हो, बट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो कर लेना, परेशानी नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में, आई वांट टू एक्सप्लेन यू इफ आई वांट। सो यहाँ तक तो हमारा कोड इतना हो गया, एंड देन वी डिक्लेयर एन इंटीजर, ठीक है। तो अब डिक्लेयर करते हैं एक इंटीजर, डिक्लेयर इंटीजर, डिक्लेयर एन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर दे देता हूँ यहाँ पे मैं करंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू एन, ओके। एंड देन मैं यहाँ करता हूँ एक और डिक्लेयर, ठीक है। इंटीजर देता हूँ जो मैं देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल सम ऑफ स्केयर्स, ठीक है। जो स्केयर का सम लेना हमने, सम ऑफ स्केयर आपको पता है ना कैसे लेते हैं, दो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्केयर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप वो स्केयर रूट यूज़ कर सकते हो, स्केयर यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको सी मैथ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इजीली, ठीक है, सम ऑफ स्केयर, ओके। अब यार इसके लिए फंक्शन आपको करवाया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, यू कैन जस्ट यूज राइट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप, मैं बता देता हूँ सर, यहाँ पे आप सी मैथ यूज़ कर सकते हो, सी मैथ लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तरीका सिंपल आपको पता है, हैश इंक्लूड, ठीक है जी। ओके, सो यहाँ तक हो गया था ना, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिक्लेयर इंटीजर हमने कर दिया, सम ऑफ स्केयर्स कर दिया, अच्छा। सम ऑफ स्केयर करके ना इसको आपने जो वैल्यू आपके इसके मुताबिक आपने कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल मेंशन नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद हम आगे जाते हैं एक और वाइल लूप पे, ठीक है। इसमें बताते हैं जो हमारे पास जो करंट वैल्यू है ना, अगर वो इज़ नॉट 1 है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम कहते हैं ग्रेटर देन, अगर वो नम है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हम कर देते हैं, ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, कहता है जी द नंबर इज अनहैप्पी, रिक्वायरमेंट इज टेक अ पॉजिटिव नंबर एंड एज इनपुट, रिप्लेस एन विद द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ डिजिट रिपीटिंग अंटिल either the number of become one happy number, a previously seen number repairs unhappy output this type। क्वेश्चन में इतना है, ठीक है। अब उसी को आगे हम यहाँ बता रहे हैं वाइल लूप के थ्रू, ठीक है। तो परेशान ना हो, जरा समझे क्वेश्चन को। तो डू करना क्या है, अच्छा ये डू से मुराद ये कि करना ये है आपने, ठीक है। आप इसको डू वाइल लूप में समझ लीजिएगा, ये वाइल लूप हम सिंपल यूज कर रहे हैं यहाँ पे।
सो यहाँ मैं कहता हूँ, और ये बात रखें, ये मैं नेस्टेड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये नेस्टेड में है। चलें ओके, इसको रख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, डिक्लेयर इंटीजर, ठीक है जी, और उसमें कहता हूँ डिजिट ले लेते हैं हम यहाँ पे, डिजिट, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू करंट मोड 10। देखें अब यहाँ सिंपल मैं इतना कर रहा हूँ कि जो हमारा एक मैंने एक नया डिजिट यहाँ पे लिया, ठीक है, और उसको मैंने करंट जो मेरा मोड चल रहा था, ठीक है, उसमें मैंने ऐड कर दिया। अब ये मोड कौन सा है, मीडियम वाला है, ठीक है। तो काइंडली यार थोड़े फॉर्मूला याद रखो, और ये प्रीवियस हम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा काम इतना हो गया। अब आते हैं सम ऑफ स्क्वायर प्लस डिजिट मल्टीप्लाई बाय डिजिट, ये फॉर्मूला है, आप इसको जो हमने फर्स्ट टाइम में डिस्कस किया था, ठीक है। देन वी हैव करंट इज इक्वल टू, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कर देते हैं करंट, ठीक है, डिवाइड और उसको कर देते हैं बाय 10, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट है ऑलमोस्ट। उसके बाद आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एंड कर देते हैं, एंड, ठीक है। एंड किसको कर रहे हैं, वाइल को एंड कर रहे हैं। चलें जी, बैक आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारे वाइल और नेस्टेड वाइल बन गया, ओके। अब अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, ठीक है, हमने यहाँ तक इतना काम कर लिया। देन हमने क्या करना है, इसको एंड करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे करली ब्रेसेस आ जाएंगी, जो ये एंड वाइल है, ठीक है जी, यहाँ ब्रेसेस आ जाएंगी। अब आगे जाके हमने सिंपल इतना करना है कि हमने यहाँ पर एक इंक्रीमेंट बनाना है, इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट में कह देते हैं कि इंक्रीमेंट में स्टेप्स जो है वो इंक्रीमेंट होंगे बाय 1 से, यानी कि प्लस प्लस लगा रहे हो आप, ठीक है। आपका जो मेन वेरिएबल होगा, मे बी वो एन हो सकता है, मे बी वो आई हो सकता है, मे बी वो करंट हो सकता है, करंट प्लस प्लस, ठीक है। आप वो ड्राई रन करके देना कोड को, ठीक है। सो देन हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पे प्रिंट हमने सिंपल क्या करना है, जो कि आप सी आउट से कर सकते हो, ठीक है, स्टेप्स, ठीक है, स्टेप बाय एन एंड देन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन से लाइक यहाँ पे हम दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये सेट दूसरा सेट है यार, सूडो कोड वाला सेट है, कोई फंक्शन नहीं है याद, ठीक है, परेशान मत होना इस चीज़ पे, ठीक है। देन हम एंड कर सकते हैं यहाँ पे वाइल को। अब ये कौन सा वाइल एंड हुआ है, तो पहले वाला वाइल है, बिकॉज हम नेस्टेड बना रहे हैं, आपको याद होगा। इसके बाद हम बनाते हैं इफ कंडीशन, और इफ में देते हैं हम यहाँ पे कि अगर मेरा एन जो है वो ग्रेटर देन, यहाँ कंडीशन 1 है ऑलमोस्ट, चले 1, ठीक है। देन अब देखो, अगर तो कंडीशन 1 से एन है, देन द नंबर इज हैप्पी नंबर, ठीक है। अदरवाइज एल्स द नंबर इज नॉट हैप्पी नंबर, एल्स इफ, ठीक है। और प्रिंट कर देते हैं टोटल स्टेप्स टेकन, प्रिंट टोटल स्टेप्स टेकन, ठीक है जी। सो दैट्स इट। और ना ये जो है ये यहाँ प्रिंट होगा, ये सेपरेट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ, हाँ एक चीज़ और, स्टेप्स तो बता दो यार, स्टेप्स बताने हैं, ठीक है, कोड में। तो यहाँ तक प्रोग्राम डन, एंड दिस इज द सूडो कोड ऑफ दिस असाइनमेंट, ठीक है। इसका मैं आपको बता देता हूँ इसको, सिंपल आपकी जिसकी हेडिंग स्टेटमेंट्स है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, एंड दिस इज द सूडो कोड ऑफ दिस फंक्शन, राइट, यहाँ से लेके ऑनवर्ड यहाँ तक, ठीक है जी। अब इस सूडो कोड को देख के आप एज टू इज कोड बना सकते हो अपना, ठीक है। और भाई अगर इसके बाद भी कोड नहीं बनता ना, तो यार छोड़ो बस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक इन करो, मेरा दिल भी नहीं कर रहा पढ़ाने को, और मेरा ख्याल से आपका दिल भी नहीं कर रहा होगा इस टाइम पढ़ने को, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट रात के 2 बज रहे, ठीक है, और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ कुछ दोस्तों की रिक्वायरमेंट पे और कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे। आई होप मैं आपको क्वेश्चन सारे समझा सकाऊंगा, ठीक है। एंड मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।